بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جمیل اختر، آپ کا ہوسٹ پروگرام تعلیم و تربیت کے ساتھ. جے نیوز لا رہا ہے آپ کے لیے جدید طریقہ کار جو تعلیم میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے ہم ماہر تعلیم پرائیویٹ سیکٹرز اور گورنمنٹ سیکٹرز کے ماہر تعلیم کو اپنے ساتھ رکھیں گے. وہ ہمارے ہوسٹ ہوں گے. ہم انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. جو ایجوکیشن کے متعلقہ لوگ ہیں ان کو سیکھنے کا بہت موقع ملے گا، اور انشاءاللہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے جو جنہوں نے پوری زندگی اپنی تعلیم کے شعبہ میں صرف کی اور وہ اپنا ایک نام پیدا کر چکے ہیں. انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ بھی ہم نے انتہائی قابل احترام اور قابل ماہر تعلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سابق تحصیل صدر رہ چکے ہیں ایفسکا کے، اور ابھی موجودہ جو ہے وہ سینئر نائب صدر ہے ضلعی باڈی کے، اور اپنا ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں جس کا نام ہے ابن سلیم اسلامک انگلش اسکول. تو ہم انہی کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. اور جو ہمارا، جس طرح میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے تعلیم اور تربیت، تو اس تعلیم و تربیت کے پروگرام میں ہم اپنے اس مہمان کا تعارف کرواتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں محمد ندیم سلیم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جناب، آپ مجھے اس پروگرام میں دعوت دی، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جے نیوز کا کہ انہوں نے اتنا اچھا جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے پروگرام جو ہے اس کا انعقاد کروایا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جے نیوز جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبہ کے اندر جو ہے وہ اپنی کارکردگی کو اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے وہ بناتا جا رہا ہے. اور ایک بار پھر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام کے اندر مدعو کیا. تو جی ندیم صاحب، آج کا یہ پہلا سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، تو امید ہے اس سوال کے جواب میں مجھے اور میرے آڈینس کو اچھا سیکھنے کو ملے گا. پہلا سوال ہے کہ تعلیم اور تربیت، اس کا بنیادی فرق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے مطابق کیا ہے کہ تعلیم اور تربیت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا جو کوسچن کہ تعلیم و تربیت کا بنیادی فرق جو ہے وہ کیا ہے، تو اگر ہم اس کے لغوی معنی سے بالکل جو اس کا لفظی معنی ہے اس سے مراد لیتے ہیں تو تعلیم جو ہے وہ علم سے ہے. علم کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جاننا، کوئی بھی ایسا نالج جو ہم حاصل کرتے ہیں اسے جو ہے وہ تعلیم کہا جاتا ہے، علم کہا جاتا ہے. اور تربیت کا اصل جو ہے وہ اپنے اخلاق کو، کردار کو سنوارنا، اپنی زندگی کے اندر عملی چیزوں کو لے کر آنا، یہ بیسکلی جو ہے وہ تربیت ہے. جی ندیم صاحب، بہت اچھا جواب دیا آپ نے. اب میرا اسی سے اگلا ایک کوشچن ہوگا کہ آج کی تعلیم ہماری تربیت کے لیے کافی ہے کیا؟ اگر کافی ہے تو کیا ہماری تعلیم جو ہے وہ تربیت کر رہی ہے یا کس حد تک کر رہی ہے؟ اس کے حوالے سے میں آپ سے جواب جاننا چاہوں گا. جی سر، ہمارا جو نظام تعلیم ہے اگر اس کو ہم موجودہ دور کے حوالے سے دیکھیں تو میرا جواب اسی میں ہوگا کہ آج کا جو ہمارا دور ہے اس کے مطابق جو تعلیم ہمیں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں فراہم کی جا رہی ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ ناکافی ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ جو تعلیم کا ہم جو ہے وہ یونیورسٹیز وغیرہ میں یا ہم جو ہے وہ کالجز وغیرہ میں دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے روزگاری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس سے بے روزگاری کے اندر کوئی واضح طور پر کمی جو ہے وہ نہیں نظر آ رہی ہے. بیسکلی تعلیم کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ وہ صرف علم و شعور تک ہی رکھے، بلکہ اس کا اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس سے سیکھنے کے بعد اپنے آپ کو جو ہے وہ عملی زندگی کے اندر جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکے. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ اس تعلیم کے حاصل کرنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایم اے کیا ہوا ہے، ایم ایس سی کیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی وہ بیچارہ مجبور ہو کر جو ہے وہ ایک بازار میں جو ہے وہ ایک ٹھیا اور ایک ٹھیلا لگانے پر جو ہے وہ مجبور ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول ہے
उस पर जो है वो मेयार तालीम अब कहाँ तक पहुंच चुका है, या वो लोग अब जो है वो इस चीज को कहाँ तक ले जा चुके हैं। तो अगर आप सर्च करते हैं, देखते हैं, तो वहां पर तो जो है वो प्राइमरी लेवल के बाद से ही जो है वो लोगों को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जो है वो फॉरवर्ड कर दिया गया है। जबकि हमारे यहाँ टेक्निकल कॉलेज जो है वो बिल्कुल अलग से, अगर कहीं पर है भी तो उन्हें बिल्कुल अलग से दे दिया गया है कि आप डिप्लोमा मैट्रिक के बाद करें, और वो एक अलग कॉलेजेस जो है वो बना दिए गए हैं। लेकिन होना ये चाहिए, तालीम और तरबियत और ये जो टेक्निकल एजुकेशन है, इसको जो है वो एक साथ एक ही इदारे के अंदर जो है वो इनको रखना चाहिए। और बुनियादी तौर पर ये दोनों हैं भी जो है वो एक साथ ही, इनका चुनी दामन का साथ है। लेकिन माजरत के साथ हमारे जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स में, हमारे जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर ये एक बहुत बड़ा खला बाकी है कि इसके अंदर जो है वो हम तालीम को अलग से जो है वो करते हैं, तरबियत के लिए कोई ऐसा माहौल जो है वो हमें मुयस्सर नहीं है, और फिर प्रैक्टिकली लाइफ के लिए जो है वो हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो अब तक मौजूद नहीं है। मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे प्राइवेट इदारे, इंस्टीट्यूट्स ऐसे कायम हो चुके हैं कि जहाँ इन दोनों चीजों को लेकर जो है वो चला जा रहा है। लेकिन वो इतने बड़े जो है वो निजाम के अंदर जो बहुत जो है वो आटे में नमक के बराबर जो है वो है। तो जरूरत इस अमर की है कि तमाम के तमाम इदारों के अंदर गवर्नमेंट लेवल पर जो है वो इसको लाजमी किया जाए और इस चीज को जो है वो शामिल किया जाए, ताकि जब हमारा बच्चा जो है वो ये डिग्री हासिल कर ले तो वो कम से कम इस काबिल हो कि वो जो है वो अपना एक सेटअप बना सके, अपनी जिंदगी को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो गुजार सके और मुआशरे के लिए एक मुफीद शहरी साबित हो। बहुत शुक्रिया नजीम साहब आपका, आप यहाँ पे तशरीफ लाए और आपने बहुत ही अच्छी बातें की, बहुत अच्छी जवाबात दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें जो है वो हम अगले प्रोग्राम में भी करते रहेंगे। ये न्यूज़ पे हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, और मेरे साथ ये मजीद आगे प्रोग्राम होते रहेंगे, और हम इसी तरह दोनों शोबों से, प्राइवेट और गवर्नमेंट शोबों के माहिर तलीम को अपने यहाँ मदऊ करते रहेंगे, अपने स्टूडियो में बुलाते रहेंगे, और उनसे इसी तरह की मफीद मालूमात जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन अगले प्रोग्राम तक बेसब्री से हमारा इंतजार करेंगे, और इंशाल्लाह हम आगे भी एक मुफीद प्रोग्राम जो है करने जा रहे हैं, और वो हमारा वहाँ पे हमारे जो मेहमान होंगे वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर से होंगे, माहिर तलीम होंगे। तो आगे इसी प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, और हम इंतहाई मशकूर भी हैं जे न्यूज़ के कि वो ऐसा प्रोग्राम हमें दे रहे हैं जिससे हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो हमारे टीचर हजरात हैं, हमारे तलीमी इदारे हैं, वो सीखेंगे, वो लेंगे, वो तरबियत लेंगे, और वो अपने इदारों में जिद्दत लेके आएंगे और बेहतरी लेके आएंगे। तो इंशाल्लाह आपकी बातें और आइंदा आने वाले मेहमानों की भी बातें मुफीद साबित होंगी, उम्मीद करता हूँ। तो इसी के साथ मैंने अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ जी। जिस तरह आपने जिक्र किया कि सर प्राइवेट स्कूल्स में भी और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि दोनों को मिलके एक अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहिए, अच्छा जो तालीम के अंदर और तरबियत के अंदर फुकदान देखा जा रहा है उसको भरपूर तरीके से बेहतर किया जा सके। दोनों स्टेक होल्डर्स को अपने अपने रोल्स को अदा करना है, और टेक्निकल जो एजुकेशन है उसको भी प्रमोट करना है। तो इसके साथ ही मैं अपने अपने क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। वो क्वेश्चन ये होगा कि सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त तक दोनों जो शोबे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है, उनका अपना एक सिस्टम है, वो अपने इस सिस्टम के तहत चल रहे हैं, और इसी तरह गवर्नमेंट वाले हैं वो अपने एक करिकुलम के साथ चल रहे हैं। तो क्या आप इन दोनों शोबों के साथ, दोनों शोबों में किसी को ज्यादा नंबर देते हैं या किसी को कम देते हैं, या वो आप क्या समझते हैं कि कौन अपना जो अपना किरदार वो बेहतर तरीके से अदा कर रहा है? तो ये मेरा क्वेश्चन है कि दोनों शोबों में जो प्राइवेट और गवर्नमेंट है उनमें से बेहतरी कौन लेके आ रहा है और बेहतर परफॉर्म कौन कर रहा है, ये आपसे मेरा ये क्वेश्चन होगा। जमील साहब, ये तो आपने मुझे काफी मुश्किल में डाल दिया इस क्वेश्चन के साथ। उसकी वजह ये है कि मैं खुद जो है वो प्राइवेट सेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखिए जी, बात ये है कि वो किसी ने खूब कहा कि जी अपनी लस्सी तो जो मीठी होती है। तो खैर, लेकिन कुछ चीजें हैं ऐसी जो हम जो है वो पब्लिक खुद इस चीज को जानती है कि इस वक्त जो है वो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो मैं बहरहाल ये समझता हूँ
कि पब्लिक सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, मैं समझता हूँ कि ये दोनों ही जो है ये गाड़ी के जो है वो दो पहिए हैं, इनके बगैर जो है वो चलना जो है वो नामुमकिन सी बात है। उसकी बेसिक वजह ये है, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि इनको जो है वो अलग अलग गर्दाना जाए। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर भी उन्हीं लोगों को तालीम दे रहा है जो हमारे मुआशरे के लोग जो है वो मौजूद हैं, मुआशरे के ही लोग, और प्राइवेट सेक्टर भी उन्हीं लोगों को आगे लेकर जो है वो तालीम दे रहा है जो हमारे इसी मुआशरे के लोग हैं। तो हम जो है वो इन दोनों को अगर अलग अलग से गिरदानेंगे तो ये हम जो है वो मुआशरे के अंदर एक तनाफुर पैदा कर रहे हैं, मुआशरे को जो है वो दो ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर रहे हैं। तो मेरा तो इसके ऊपर ये था आपके इस क्वेश्चन पे कि पहली बात तो है हम इसको देखेंगे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट बेसिकली जो है मैं समझता हूँ कि ये दोनों जो है वो एक इन दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है और दोनों लाजिम और मलजूम इदारे हैं। रही बात ये कि इनकी परफॉर्मेंस, तो जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर को मैं जो है वो जिस तरह से आप अगर उसके लिए मैं ज्यादा यही कहूंगा कि आप जो है वो हमारे बोर्ड के रिजल्ट को देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा भी ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो बेशुमार चीजों के अंदर आप मैं इसका जो है ना बेसिक मैं अवाम पर ही छोड़ता हूँ कि आप खुद जो है वो इनके दरमियान जो तफावत है, जो इन दोनों के दरमियान फर्क है, उसको आप बखूबी जो है वो खुद जो है वो इससे आगाह है। अलबत्ता मैं ये चाहूंगा कि इन दोनों इदारों को आपस में जो है वो इत्तेहाद जो है वो कायम करना चाहिए, इन दोनों को आपस के अंदर जो है वो मजीद कोऑर्डिनेशन जो है वो पैदा करना चाहिए। और गवर्नमेंट के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि अगर चेक एंड बैलेंस रहे तो हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं, उनकी क्वालिफिकेशन जो हमारे प्राइवेट इदारे के अंदर जो टीचर होता है उससे बहुत ज्यादा हाई फाई होती है, हम इस चीज का एतराफ करते हैं। लेकिन फिर आखिर क्या वजह होती है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर का कम जो है वो तालीम याफ्ता टीचर जो है वो जब रिजल्ट देता है तो वो प्राइवेट इदारों के जो कम पढ़े लिखे थोड़े से मतलब होते हैं, हमारे पास भी जाहिर ऐसे टीचर्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर गवर्नमेंट का क्राइटेरिया देखते हैं तो बहुत ज्यादा हाई फाई है। तो उस क्राइटेरिया के लोग जो है वो रिजल्ट उनके रिजल्ट पे और हमारे पास जो लोग होते हैं उनके रिजल्ट में जो है वो क्या है बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा होता है। तो उसकी बुनियादी वजह जो है वो चेक एंड बैलेंस की है। अगर गवर्नमेंट जो है वो चेक एंड बैलेंस को जो है वो बेहतर अंदाज से रखती है तो मैं समझता हूँ कि जो है वो ये भी जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो दे सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। वाकई मैंने आपको मुश्किल में डाल दिया था क्योंकि आपका ताल्लुक एक प्राइवेट सेक्टर से है और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट सेक्टर जाहिर है वो भी एक अलग से हम उस पे ओपिनियन लेंगे और इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम गवर्नमेंट सेक्टर से कोई माहिर तालीम को लेंगे तो वो हम बैलेंस कर देंगे, आप फिक्र ना करें। जहां तक तलक है कि सर के जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में पोजीशंस नहीं आ रही तो उनमें उसकी बड़ी वजह यह भी है कि उनके पास फैसिलिटीज अमारत होना बड़ी बात नहीं होती, उनके पास फैसिलिटीज की कमी होती है और इस तरह का एक सिस्टम है कि अगर वो वहां से कोई पॉलिटिकली कोई टीचर जो है ट्रांसफर कर दिया जाए, अच्छा टीचर निकाल दिया जाए और दूसरे को आते हुए 3 या 4 महीने लग जाते हैं और वो बच्चों पे गैप रहता है। तो तीसरी बड़ी बात ये होती है कि वो जो टीचर्स होते हैं हमारे पास उनमें बहुत कम लोग जो है बाई चॉइस एज ए टीचर आए होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में और बहुत सारे जो होते हैं वो सिर्फ नौकरी के लिए आए होते हैं। तो जब वो नौकरी के लिए आते हैं तो वो फिर नौकर ही होते हैं, वो अच्छी आउटपुट नहीं दे सकते, ये भी हो सकता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में क्योंकि हम डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है हमारे पास जो ऑडियंस है, जो हमारे जो मेन कस्टमर्स जो होते हैं, आप इनको कस्टमर्स कहें, आप इनको क्लाइंट कहें, जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं उनके पेरेंट्स आपके साथ डायरेक्टली क्योंकि वो आप खुद चेक एंड बैलेंस रखते हैं, आप रखें ना रखें वो जरूर खुद आपके साथ चेक एंड बैलेंस रखेंगे और अगर आप उन पे सही नहीं फोकस नहीं करेंगे तो वो आपका रेवेन्यू कम कर देंगे, अगले साल आपसे बच्चे ले जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट में क्योंकि ऐसा नहीं है, उनके बच्चे जाएं उनके बच्चे रहें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरी बात यह है कि सबसे बड़ा जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में जो फ्लॉज मुझे नजर आते हैं वो ये है कि वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर उसमें से निकाल दी जाए तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट में जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, वो क्योंकि हम खुद भी उनसे पढ़े हुए तो वो एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं और हमारी एजुकेशन को एलिवेट कर सकते हैं। तो इस एलिवेशन में उनका बहुत अच्छा किरदार हो सकता है। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक किस्म का जवाब दिया और बनता भी ऐसे ही था। मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर कोई जवाब और हो सकता था। सर हम उसको छोड़ देते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स को और गवर्नमेंट सेक्टर को भी छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे दूसरी किस्म की तालीम की तरफ आ जाते हैं। मेरा क्वेश्चन जो थोड़ा सा दूसरी तरफ आ रहा है वो ये है कि हमारे पास 2 किस्म की तालीम है, एक दुनियावी तालीम है,
दीनी तालीम है। हम अगर इन दोनों को अब यहाँ पे आके कंपैरिजन करें तो दो स्टेक होल्डर्स एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दो कैटेगरीज एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आ जाती हैं, एक दुनियावी और एक दीनी। अब मुझे ये बताएं कि क्या हमारी दीनी तालीम हासिल करने वाला बंदा या बच्चा जो है वो हमारे इस माशरे में सेट हो सकता है, या हमारा दुनियावी, मैं इसी से अगला क्वेश्चन, मैं दोनों क्वेश्चंस को ज्वाइन करूं कि दुनियावी तालीम हासिल करने वाला बच्चा क्या हमारे दीन को सही करके समझ सकता है कि नहीं सकता? क्योंकि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में ये क्वेश्चन करने के पीछे बैकग्राउंड एक ये है कि मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन थी, वो ये थी कि मैंने बहुत सारे ग्रेजुएट्स देखे हैं जिनको गुस्ल के फराइज भी नहीं आ रहे होते, तो ये भी हमारे माशरे का बड़ा अलमिया है। तो इसको आप कैसे लिंक करते हैं इस तरह हम ताकि हम अपने माशरे को बेहतर कर सके? दुनियावी तालीम और दीनी तालीम में आप क्या समझते हैं, उनको बेहतरी लाने के लिए, या दोनों कैटेगरीज को आप किस नजर से देखते हैं? जी रैसा, मुझे तो यही लग रहा है कि आज आप जो है वो सारे क्वेश्चंस ही ऐसे करेंगे कि जिनके लिए मैं जवाब देना जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बेसिकली ये है कि जैसे आपने पहले पेस्टा और गवर्नमेंट सेक्टर का लिया, अब मेरे सामने आपने क्वेश्चन रख दिया दीनी और दुनियावी तालीम के हवाले से। तो बेसिक मैं सबसे पहले अपनी एग्जांपल दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जामिया से भी एक मुकम्मल जो है वो दीनी तालीम हासिल की, और उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर भी किया। तो ये दोनों तालीमें जो है ये साथ लेकर चलना, मैं समझता हूँ कि कोई मुश्किल काम नहीं है। हम इन दोनों तालीम को साथ जो है वो लेकर चल सकते हैं। अब अगर हम ये देखें कि जी एक वो शख्स के जो सिर्फ दीनी तालीम हासिल करता है, वो मुआशरे के अंदर उसका क्या किरदार हो सकता है, तो देखिए बात ये है कि दीनी तालीम, जो दीनी मदारिस हैं, अगर हम उनकी तरफ बात करते हैं तो मैं बड़े फख्र से ये कह सकता हूँ कि इस वक्त हमारे बड़े बड़े जामियात जो हैं, बड़े बड़े मदारिस ऐसे हैं कि जिनके अंदर अब भी 16 से 18 बल्कि 20 ममालिक के लोग जो है वो यहाँ पर दीनी तालीम हासिल करने के लिए जो है वो आ रहे हैं। जामिया बिनोरिया कराची के अंदर इस वक्त जो लास्ट उनकी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें गालिबन 18 से 20 ममालिक के लोग जो है वो ये दीनी तालीम हासिल करने के लिए जो वो आए हैं। तो यहाँ पर जामिया रशीद और इस तरह से बेशुमार बड़े दीगर ऐसे इदारे हैं कि जहां पर जो है वो दीनी तालीम इस पाए की दी जाती है कि बाहर से, बैरून मुल्क से लोग जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो तालीम हासिल करते हैं। लेकिन माजरत के साथ अगर हम यूनिवर्सिटीज की तरफ जाएं या अगर हम दूसरी दुनियावी तालीमी इदारों की तरफ जाएं, तो मेरे ख्याल से हम में से हर दूसरा शख्स जो है वो दीनी तालीम, दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए जो है वो बैरून मुल्क सफर करने का ख्वाहिशमंद होता है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है दीनी मदारिस की तालीम के अंदर और एक जो दुनियावी यूनिवर्सिटीज की तालीम है उनके अंदर। लेकिन अब चूंकि जो है वो मुआशरे के अंदर एक दौड़ सी लगी हुई है इंसान की, तो उसके अंदर ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे मदारिस का वजूद जो है वो आ चुका है जिसके अंदर दीन और दुनिया दोनों सिखाए जाते हैं। बल्कि अभी बैतुस्सलाम जो है वो तलागंज के अंदर जो है वो क्या है, एक रोबोट का जो मुकाबला हुआ हमारे यूनिवर्सिटीज में, तो वो एक मदरसे के तालिब इल्म जो थे उन्होंने विन किया। हमारी पूरी यूनिवर्सिटीज वहां मौजूद थी और उसके अंदर भी क्या था, वो एक मदरसे के अंदर तालीम हासिल करने वाले लोग जो है वो उन्होंने किया। इसी तरह मदारिस के अंदर ओ लेवल जो है वो भी, उसका भी आगाज जो है वो हो चुका है। तो जरूरत इस अमर की है कि यूनिवर्सिटीज की जो हमारी तालीम है उसके अंदर भी इस निसाब को जो है वो शामिल किया जाए। हमारी जो बुनियादी जो जरूरियात हैं, कुरान और हदीस और दीगर जो चीजें हैं उनको जो है वो निसाब के अंदर, और बल्कि ये किया भी गया है कि कुछ हमारे जो है वो सिलेबस जो है वो शामिल किया गया है। लेकिन मजीद इस चीज की जरूरत है कि इसके अंदर जो है वो हमारी जो बुनियादी फराइज उलूम है उनको जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल किया जाए। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि मदारिस के अंदर भी इस्लाहात की जरूरत है। मदारिस के अंदर भी जो है वो हमें दूसरी जो तालीम की कुछ जरूरी जो है वो बुनियादी किताबें हैं वो भी शामिल करने की जरूरत है, और माहिरीन इसके ऊपर जो है वो काम भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये फर्क, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है ये फर्क जो है वो खत्म हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने बहुत ही मुफीद इस सवाल का, बहुत ही मुश्किल सवाल था लेकिन इसके बावजूद आपने
بہت اچھا جواب دیا، اور واقعی ایسا ہے کہ کچھ جو مدرسات ہیں ان میں انہوں نے جدید تعلیم کا آغاز کر دیا ہے، اور اسی طرح کچھ جو جدید ایجوکیشن سسٹمز ہیں ان میں بھی حفظ قرآن اور اسی طرح اسلامک بکس کا جو ہے نا وہ شمولیت ہو گئی ہے، جیسے کہ فہم القرآن جو ہے وہ گورنمنٹ میں لازمی قرار دے دیا گیا، گورنمنٹ کے اسکول اور یعنی کہ ہمارے کوریکولم میں شامل کر لیا گیا، اور اسی طرح پرائمری سطح پہ ناظرات القرآن کو جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے، تو اس سے بہت اچھا فرق پڑے گا۔ لیکن جو میں جو دیکھنا چاہ رہا ہوں، یا میں جو براڈ اسپیکٹرم میں اس چیز کو لے کے آنا چاہ رہا تھا، اس کوشچنس کو لینے کے لیے آنا چاہ رہا تھا کہ گورنمنٹ سطح پہ اگر ایسا کچھ کر دیا جائے کہ وہ ایک ایسا سسٹم بلڈ کر دیا جائے کہ ہم اپنے اسکولوں کے اندر قرآن کا نظام اور حدیث کا نظام جو ہے وہ اس کو شامل کر لیں، اور اسی طرح مدرسہ کے اندر بھی مدرسہ کو بھی اسکول کی طرح کی باقاعدہ جو سائنس، میتھ، انگلش، اردو اور اس طرح کی جو بکس ہیں وہ بھی حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ یا درس نظامی کے ساتھ ساتھ وہ بھی اگر پڑھائی جائے تو وہ لوگ جو عالم دین بن کے نکلیں تو وہ بہترین اکاؤنٹنٹ بھی ہو، بہترین ڈاکٹرز بھی ہوں، بہترین انجینئرز بھی ہوں اور عالم دین بھی ہوں۔ اسی طرح جو لوگ ادھر سے واپس آ رہے ہیں، جو ڈاکٹرز یا انجینئرز کر کے آ رہے ہیں، وہ اگر عالم دین ہوں گے یا عالم دین جو ہے وہ ڈاکٹر اور انجینئر بنیں گے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت ترقی کرے گا، اور اسپیشلی دین کا اس میں بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ ہمارا جو اصل محور ہے، ہماری زندگی کا محور ہے، وہ ہے قرآن و حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور ہم انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ہم کامیابیاں سمیٹیں گے، ورنہ ہمیں ہماری قوم کو، ہمارے اسلام کو بہت بڑے خطرات جو ہے وہ آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اس پہ گورنمنٹ کو بہت جلد جو ہے وہ لینا چاہیے، انیشیٹو لینا چاہیے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں اپنے معزز مہمان محمد ندیم سلیم صاحب کا، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے اسٹوڈیو کے لیے، اور میں اسپیشلی شکر گزار ہوں اپنے CEO جے نیوز طاہر محمود صاحب کا، جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ ہم ایسے پروگرامز جو ہے وہ کریں اور آگے بھی کرتے رہیں، تاکہ ہماری نسلوں کو، ہمارے قوم کے معماروں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے، اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح کا یہ جو پروگرام ہم نے آج کیا ہے اس سے بہت سارا مواد جو ہے وہ ایسا ہوگا، ایسا سٹف آپ کو ملے گا جس سے آپ اپنے تعلیمی اداروں کو بہتری لا سکیں گے، یا ان پہ آگے سوچنے کا موقع ضرور ملے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا، جے نیوز کو دیکھا، جے نیوز کے پلیٹ فارم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔